صبح کا سورج عروج پر تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، سب کو ایک دوسرے سے زیادہ پیارا لگنا تھا۔ دلہنوں کو بیوٹیشنز تیار کر رہی تھی، انابیہ اور نمل تو چہک رہی تھی، رمل بس خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر انابیہ کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ آغا جان کے کہنے پر تینوں کے نکاح دوبارہ ہوئے تھے۔ دلہنوں کے سٹیج پر آتے ہی شور مچا تھا۔ مختلف قسم کی رسموں کے بعد رخصتی کا وقت ہوا۔ سب سے پہلے نمل کو رخصت کیا گیا۔ بے شک وہ اسی گھر میں رہنے والی تھی، لیکن رخصت ہوتے وقت باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ پھر رمل کی باری آئی، جس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا تھا، اور آخر پر بدر کی باری۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی نے عنقریب مجھے پاگل کر دینا ہے۔ بدر کے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ملہان اور رمل نے آج رات یہیں رکنا تھا، پھر اگلے دن شہر روانہ ہو جانا تھا۔ ملہان سرد تاثرات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ پورا کمرہ خالی تھا، رمل کا نام و نشان بھی نہ تھا وہاں۔ وہ جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں پر ایک پیج پڑا تھا۔ آفیسر ملہان، دل سے پتھر ہونے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ پیج پر لکھی یہ لائنز ملہان کو ساکت کر گئی تھی۔ جس دن آپ کے قابل بن گئی، اس دن آپ سے سامنا بھی کر لوں گی۔ ڈھونڈنا بیکار جائے گا، سو کوشش مت کیجیے گا، آپ کی رمل۔ ملہان کے ہاتھوں سے پیج نیچے گرا تھا۔ وہ تو رمل کا پہلا فقرہ ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے رمل کو جو سرپرائز دینا تھا وہ بھی بیکار گیا۔ صحیح کہا تھا کیس نے کہ رمل سے ایک دفعہ بات کر لوں، لیکن اس نے سرپرائز کے چکر میں رمل کو ہی گنوا دیا تھا۔ کون جانے کہاں گئی تھی۔ کیس اور بدر کے پریشان ہونے کا سوچتے وہ چپ کر کے گھر سے باہر نکل گیا، اور اپنے بندوں کو اس نے گلی گلی پھیلا دیا، لیکن رمل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لہنگا پہنے لڑکی فل برائیڈل لک کے ساتھ ان کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سب نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی نے سلام کرتے گردن جھکا دی۔ سب حیران نظروں سے اس دلہن کو دیکھ رہے تھے جو گردن جھکائے کھڑی تھی۔ مومنہ شاہ رمل کو پہچانتے جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور حیران ہوتے رمل کو بازوؤں سے پکڑ کر بولی، رمل بیٹا۔ لیکن ان کے پوچھنے سے پہلے ہی رمل روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ رمل کے سچائی بتانے پر ہر طرف سکوت چھا گیا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے زبردستی ان سے نکاح کیا تھا۔ رمل نے صرف اپنی سچائی بتائی، ملہان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ رمل کو زاروں قطار روتا دیکھ کر حاتم خان جلدی سے رمل کی طرف بڑھے اور اسے سینے سے لگاتے دلاسا دیتے ہوئے بولے، آپ روئیں مت بیٹا، آنے دیں اس ناہنجار کو، کرتا ہوں میں اس کا علاج۔ نہیں بابا، آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ انہیں میرے یہاں ہونے کا بھی نہیں بتائیں گے، رمل نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ میمونہ، آپ انہیں روم میں لے کر جائیں، بابا خان سے میں خود بات کر لوں گا۔ حاتم خان نے رمل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مومنہ بیگم سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ رمل بیٹا، کب ہوا یہ سب؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مومنہ بیگم نے کمرے میں جاتے رمل سے پوچھا۔ مورے وہ بس، رمل نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ وہ نالائق کدھر ہے مورے؟ وہ تو ادھر حویلی میں ہی ہے۔ بہت اچھا کیا جو آپ اسے چھوڑ کر آ گئیں، مومنہ بیگم نے تھوڑا غصے میں کہا۔ گھر آئے اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گی میں۔ مورے پلیز آپ انہیں مت بتائیے گا، رمل نے ان کا ہاتھ پکڑتے التجا کی۔ لیکن بیٹا وہ پاگل ہو جائے گا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مورے یہ ان کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک بار سوچ لو۔ سوچ کر آئی ہوں مورے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ اس حویلی میں بہت کم آتا ہے، زیادہ تر اپنے فلیٹ پر ہی ہوتا ہے، اس کی جاب کی نوعیت ایسی ہی ہے مورے۔ رمل یہاں بہت گھبراتے ہوئے آئی تھی، لیکن سب کا پیار دیکھ کر اسے اپنا فیصلہ صحیح لگا تھا۔ ملہان کا وہ معصوم اور آخری حد تک معصوم ہونا، وہ سب فراڈ تھا۔ رمل کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، ایسے جیسے سب مر گیا ہو۔ کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی ملہان کے لیے کوئی جذبات باقی تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ رمل کو اپنا آپ ٹکڑوں میں بٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے شاور لیتے چینج کیا اور وضو کرتے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وضو کرتے اسے ملہان کی یاد آئی، لیکن پھر سر جھٹکتے نماز کی طرف دھیان لگا گئی۔ بہت مشکل سے آنسو بہاتے کانپتے ہوئے اس نے نماز ادا کی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو بس ایک جھوٹ بولا تھا، مگر وہ انسان تو سر سے پاؤں تک جھوٹا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اے میرے رب۔ وہ زاروں قطار روتے روتے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ مومنہ خان اس کے لیے کھانا لے کر آئیں تو اسے جائے نماز پر ہی سوئے دیکھ کر دکھی ہوئی، اور خود سے سوچا
अल्लाह जाने क्या कहा है मिल्हान ने इस मासूम से जो इस तरह तड़प रही है। आगे बढ़ते उन्होंने रमल को उठाना चाहा। रमल बेटा, लेकिन रमल तो जैसे सदियों बाद आज सोई थी। उन्होंने रमल को सहारा देते बेड पर लिटाया और कंबल सही करके खाना वापस ले गए। गुजरा एक साल अनाबिया और बदर के लिए खुशियों की बरसात लाया था। हरम शरीफ देखने के अलावा वो दोनों बहुत से ममालिक घूम कर आए थे और शायद घूमते रहते अगर अनाबिया की तबीयत खराब ना होती। अनाबिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पर बदर खुशी से पागल हो रहा था। अनाबिया थोड़ा डर रही थी, लेकिन बदर ने उसे संभाल लिया था। कैस और नमल को अल्लाह ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा था जो बिल्कुल अपने बाप पर गया था, और नमल को ये गम खाए जा रहा था कि खानजी अब उससे प्यार नहीं करते। नमल का बेटा 4 माह का हो चुका था। नमल ने महसूस किया कि कैस का रवैया बेबी के बाद नमल से सर्द सा था। पहले तो शायद वो बेबी की वजह से उसकी केयर करता था, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं होती थी कि नमल कहाँ है। वो हर वक्त अपने बेबी के गिर्द पाया जाता। कैस ने अपने बेटे का नाम विदान खान रखा था। कैस के रवैये पर नमल कुढ़ती थी, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलती थी। मिल्हान ने रमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम ठहरी थी। उसे उस वक्त पर पछतावा हो रहा था जब उसने कैस लाला के कहने पर सब ड्रामा किया था। जी हाँ, सही समझे आप। मिल्हान कोई ऑफिसर नहीं, उसने ये सब कैस के कहने पर किया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रमल इस हद तक बदगुमान हो जाएगी उससे। उसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसे याद था आज भी वो दिन। कैस लाला, मैं कभी इतना सब घर वालों के सामने नहीं बोल सकता। सब सच्चाई आपको ही बतानी होगी। बदर कैस से किसी बात पर बहस कर रहा था। अरे क्या बात हो गई है, मुझे भी बताओ। मिल्हान को देखते बदर की आंखें चमकी थी। वो झट से बोला, अरे लाला, ये मिल्हान है ना, सब हैंडल कर लेगा। हाँ हाँ बताओ, अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मिल्हान भी शोखी में सब मान गया। कैस ने बहुत कहा कि मिल्हान आप रहने दो, रमल गुस्सा होगी, लेकिन मिल्हान एडवेंचर के शौक में मारा गया। फिर कैस ने थप्पड़ के बाद भी कहा कि रमल को बता दो, लेकिन वो बस अपनी फर्स्ट नाइट का इंतज़ार कर रहा था और सब बिगड़ गया और चुपचाप अपने शहर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया। लेकिन कभी कभार मोरे से मिलने जाता और फौरी वापस आ जाता। आज फिर से रमल की याद उसे बेबस कर रही थी। उसके सर में शदीद दर्द था। उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सो जाए। इसलिए वो हवेली चला आया और सीधा अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। रमल बुखार से होश गंवाए मोमिना बेगम के कमरे में सोई हुई थी। मोमिना बेगम ने मिल्हान को देखकर एक दफ़ा आंखें फेरी थीं कि कहीं उसे रमल का पता ना चल जाए, लेकिन रमल मुंह सर लपेटे कंबल में लेटी थी। मिल्हान ने बिस्तर पर चढ़ते ही अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। मुझे बहुत दर्द है सर में, प्लीज़ बालों में उंगलियां चला दें। किस बात की टेंशन है मेरे शहजादे को, क्यों है सर में दर्द? मोमिना बेगम ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं मोरे, बस थकावट है। कुछ ही देर में मिल्हान भी नींद में गुम था। मोरे उसका सर बिस्तर पर रखती बाहर निकल गई। अल्लाह पाक इन दोनों के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। मोमिना बेगम के दिल से बेसाख्ता दुआ निकली थी। एक दूसरे से दूर रहकर दोनों ही बेसकून थे। मिल्हान ने नींद में करवट बदलते अपना बाजू रमल के ऊपर रखा। उसे लगा शायद वो ख्वाब देख रहा है। उसने रमल को खुद से लगाया था। रमल ने अपनी आंखें खोली, लेकिन खुद को किसी की बाहों के हिसार में पाकर उसकी नींद भग से उड़ी थी। उसने झटके से सर ऊपर उठाया। उसके रेशमी बाल सामने वाले के मुंह पर साया कर गए थे। अपने बालों को एक हाथ से पीछे हटाते उसने सामने वाले का चेहरा देखना चाहा, लेकिन मिल्हान को सामने देखते उस पर जैसे सख्ता छा गया था। हान इधर। ख्वाब की कैफियत में उसने अपने लब मिल्हान के माथे पर रखे। बार बार और कई बार यह अमल दोहराते वो अपने आप से किया अहद भूल चुकी थी। हर अहद भूल चुकी थी वो। उसे कुछ याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि उसके सामने उसका इश्क, उसका जुनून है, जिसे हासिल करने के लिए उसने सब कुछ भुला दिया, जिससे 1 साल की दूरी ने उसे पागल कर दिया था। मिल्हान के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के फूल खिलाते वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। मिल्हान की आंखों में हल्की सी जुम्बिश पर वो दूर हटी और अपना दुपट्टा उठाना चाहा जो मिल्हान के नीचे दबा था, लेकिन मिल्हान को आंखें खोलते देख वो दुपट्टा वहीं छोड़कर बाहर को भाग गई। जल्दी से साथ वाले कमरे में गुम हो गई। मिल्हान की नींद में खलल, खुद पर बोझ महसूस करते हुआ था, लेकिन वो अपना वहम समझते सोया रहा। लेकिन जब उसे अपने नीचे से किसी के खिंचाव का महसूस हुआ तो उसने जल्दी से आंख खोली। आंखें खोलते ही उसने किसी लंबे बालों वाली लड़की को बाहर भागते देखा था। वो जल्दी से दुपट्टा हाथ में लेता बाहर निकला और मोमना बेगम को आवाज़ें देने लगा। मोरे मोरे, क्या हुआ बेटा? मोरे, आपके रूम में ये लड़की कौन थी? बेटा, वो मेरी दोस्त की बेटी है। मोमना बेगम ने बहुत मुश्किल से बहाना बनाया।
अल्लाह जी, मोरे आप मुझे पहले बता देती ना, मैं आपके बेड पर ना लेटता। मैं कैसे किसी नामहरम के साथ एक बिस्तर पर लेट गया। मिल्हान की बात सुनते कमरे में मौजूद रमल के होंठों पर मुस्कुराहट ने हल्की सी छप दिखाई थी और मोरे भी मुस्कुरा दी। कुछ नहीं होता बेटा, आप कौन सा जानबूझकर लेटे थे, बस मेरे भी ध्यान से निकल गया। मोरे ये उसका दुपट्टा है, दे दें उसे। लाओ। मोमिना बेगम ने मिल्हान के हाथ से दुपट्टा पकड़ लिया। खुशबू जो मिल्हान के हाथों से आ रही थी, हाथ को नाक के करीब करते उसके होंठ हल्की सी सरगोशी में हिले थे। रमल, जो दरवाजे की ओट में रमल ने बखूबी सुना था। रमल का दिल किया कि अभी के अभी जाकर उसके सीने से लग जाए, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखते मिल्हान को खुद से दूर जाता देखती रही। मिल्हान के घर जाते ही रमल मोरे की जानिब बढ़ी। कैसा है मेरा बेटा, बुखार उतरा? मोमिना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मोरे, पहले से बेहतर हूँ। मोरे, आपने अच्छा नहीं किया, आपको तो मोरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक मुलाकात करवा दी। और अगर मैं पकड़ी जाती तो? अरे मेरा मासूम बेटा, देखो तो कैसे मेरी बात को सच मान गया। बहुत मासूम है। रमल भी तंजिया बोली थी। हाँ जी, अब कब तक मेरे बेटे को सजा देने का इरादा है तुम्हारा? देखा है वो पहले से कितना कमज़ोर हो गया। मोरे आप फिर यही बात लेकर बैठ गई। हाँ तो क्या करूं, मुझसे नहीं देखा जाता वो ऐसे। तुमने 1 साल का वक्त मांगा था, मैंने दे दिया। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, इस 1 हफ्ते में मुझे जवाब दे दो, वरना फिर जो मैं करूंगी ना आप याद रखोगी। मोमिना बेगम ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मोरे, रमल एहतजाजन बोली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हातिम खान किचन में आए थे। मेरे बेटे का बुखार उतरा? जी बाबा जान। क्या बातें हो रही थी सास बहू में? बाबा, मोरे मुझे डांट रही हैं। रमल ने मासूम सा मुंह बनाते हुए मोमिना बेगम की शिकायत लगाई। क्यों भाई मोमिना, क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आपकी बेटी जो मेरे बेटे को जुदाई के इंतजार में सुखा रही है ना। आप फिर से यही बात लेकर बैठ गई मोमिना बेगम। मैं नहीं बोलती कुछ, वो मुंह बनाकर बोली थी। तभी रमल और हातिम खान का कहकहा गूंजा था। रमल इस दौरान हवेली वालों की आंख का तारा बन गई थी, सबकी दुलारी बन चुकी थी। रमल ने मोरे से तेल, दही, अंडा और जड़ी बूटियां लगवा लगवा कर अपने बाल लंबे कर लिए थे। शायद इसीलिए मिल्हान भी उसे नहीं पहचान पाया था। गुजरते वक्त के साथ साथ रमल की शख्सियत में बहुत फ़र्क आया था। 5 वक्त की नमाज के साथ वो तहज्जुद गुजार भी बन चुकी थी। मोरे ने उसके लिए गली का एक छोटा बच्चा जो कुरान हिफ्ज़ करने जाता था वो भी लगवा दिया था। अब उसे बहुत सी सूरतें हिफ्ज़ थीं, पर्दे का ख़ास ख्याल रखती थी। आज नमल ने बहुत खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनकर खुद को खान के लिए तैयार किया था। आज उसने आर या पार का सोच लिया था, क्योंकि वो इस आंख मचोली से तंग आ चुकी थी। खान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कॉट से विदान गायब था। नमल, विदान कहाँ है? अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते वो पीछे मुड़ा था, जहाँ नमल खूबसूरत तरीन सुर्ख रंग की नाइटी पहने तैयार खड़ी थी। खान ने नज़रें चुराते हुए विदान का पूछा था। वो मम्मा के पास है, उसने खान के गले में बाजू डालते हुए कहा। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, वो आज मम्मा के पास ही रहेगा, मैं फीडर भी दे आई हूँ उसका। नमल ने कहते ही खान के कंधे पर अपना सर रखा था। जिस वक्त से खान बच रहा था, नमल वो फिर करीब ला रही थी। कैस ने नमल को बाजू से पकड़ते खुद से दूर किया और सर्द अंदाज में बोला, मुझे नींद आ रही है। कैस की बात सुनकर नमल को गुस्सा आया। हाँ, अभी जब अपने बेटे को लेने जा रहे थे तब तो आपको नींद नहीं आ रही थी। नींद आपको पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा आ रही है खान जी, मुझे सब समझ आ रहा है। दिल भर गया ना अब आपका मुझसे। अच्छी नहीं लगती ना मैं अब आपको, या किसी और से चक्कर चला रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो, मुझे ऐसा समझती हो? फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? नमल ने कैस को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया था। कैस ने नमल को बाजुओं से दबोच कर अपने करीब किया और उसके कान में घुर्राया था। हाँ, कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे इन खूबसूरत जहरीले होंठों की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे वो पल याद आ जाते हैं जब मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था, जब किसी ने मेरे एतबार की धज्जियां बखेर दी थी, जब मेरी मोहब्बत इतनी अंधी हो गई थी कि मैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपनी तरफ पहली बार कदम बढ़ाती बीवी को नहीं झुठला सका था। नमल, तुमने रास्ता इख्तियार किया भी तो कौन सा? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा खुद के करीब आना झुठला नहीं पाऊंगा, इसलिए उन हसीन होंठों का जहर मुझे चखाया। मर गया था तुम्हारा खान उसी दिन। उसी दिन हॉस्पिटल से वापसी पर एक आशिक, एक शोहर नहीं, सिर्फ एक बाप लौटा था जिसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी। कैस तो नमल की बातें सुनकर जैसे फट पड़ा था और नमल साकित सी खड़ी कैस की जानिब यकटुक देखते पीछे को हो रही थी। उसके जहन में कैस की बातें गूंज रही थी। इतनी नफरत,
कैस की बातों के नश्तर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे और एकदम वो होश खोते जमीन पर जा बैठी थी। कैस नमल को रोता छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। इससे पहले कि कैस बाहर की जानिब बढ़ता, नमल ने उसका बाजू पकड़ते उसे अपने सामने खड़ा किया और आखिरी उम्मीद के तहत बोली, खान जी, आप अभी तक उसी बात पर हैं। मुझे मुझे लगा कि आप वो सारी बातें भूल गए। नमल ने कपकपाती आवाज़ में कहा था। हाँ, मैं भूल जाता। अगर तुम मेरी मोहब्बत में मेरे करीब आती, पर मैं क्या करूं नमल, मैं क्या करूं। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जब मुझे याद आता है ना कि तुम्हारा वो मेरे करीब आना धोखा था और इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बीवी जो अपनी शर्मो हया की वजह से खुद कभी मेरी तरफ बढ़ती ही नहीं थी, वो बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि अपने वकार से नीचे आ गई। कैस की बातें सुनकर नमल का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। खान जी, नमल ने भीगी आवाज़ में पुकारा था। मर गया तुम्हारा खान जी, तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों के नशे से। सब मसला इन होंठों का है ना, तो अब देखें मैं करती क्या हूँ। नमल ने आगे बढ़ते जल्दी से फ्रूट के पास छुरी पकड़कर अपने होंठों पर कट लगाया। खून की एक तेज धार उसके होंठों से निकली थी। सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ खून से भर चुके थे। कैस चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ा था। इससे पहले कि वो फिर से वही अमल दोहराती, कैस ने आगे बढ़ते जल्दी से छुरी उसके हाथ से खींची थी। हाउ डेयर यू, पागल हो गई हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा। कैस ने उसे कंधों से पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा, लेकिन उसके होंठों से निकलता खून कैस को बेबस कर रहा था। कैस ने जल्दी से उसे बेड पर बिठाते दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जख्म साफ करते उस पर सिपरेट लगाया। नमल की चीख निकली थी। कैस ने उसे जिन नज़रों से घूरा था वो सर झुका गई। पट्टी करते कैस ने नमल को कंधों से पकड़कर उससे फिर वही सवाल किया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद को नुकसान पहुंचाने की। बोलो, जवाब दो, मैं कह रहा हूँ कि बोलो। वो गुस्से से नमल की खामोशी कैस के गुस्से को मजीद भड़का रही थी और वो गुस्से से फुंकारा था। खान जी, नमल ने कपकपाते होंठों से हल्के से लब हिलाए। कैस ने जब नमल को ज़ारो कतार रोते देखा तो उसे खुद से लगा लिया। सब गलत करती हो, फिर नाराज़ भी नहीं होने देती हो। जैसे कैस का तो कोई हक नहीं है ना अपनी लैला पर। खान जी, लैला मत कहें। ये लैला अपने कैस से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। उस गलती के लिए खुद को तकलीफ़ पहुंचाकर जो अज़ियत तुमने मुझे दी है ना, वो कभी माफ़ नहीं करूँगा। कैस ने धीरे से कहा था। नमल ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा था। नमल की नम आंखें देखकर कैस का दिल किया कि खुद को ख़त्म कर ले, जिसकी वजह से नमल इस हाल को पहुंची बैठी थी। नमल, सो जाओ चुप करके, वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा। कैस की बात सुनते नमल ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की थी। कैस का 1 साल से छुपा गुस्सा अब निकल चुका था। अब शायद वो कुछ ठंडा हो जाए। रमल मोमिना खान से सर में तेल लगवा रही थी जब कोई आंधी तूफान बना घर में दाखिल हुआ। मोरे बाबा कहाँ है? मिल्हान ने मोमिना बेगम की कमर को देखते हुए सवाल किया। वो अपने कमरे में है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? आकर बात करता हूँ मोरे। रमल मिल्हान की आवाज़ सुनते ही अपना मुंह दुपट्टे से ढक चुकी थी। मिल्हान को तो उस वक्त आग लगी हुई थी। वो जल्दी से अपने बाप के रूम की जानिब बढ़ा था। बाबा, क्या है ये सब? हाथ में पकड़ा कार्ड अपने बाप के सामने करके उसने पूछा। हातिम खान को अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो मुस्कुराहट छुपा कर बोले, ये शादी का कार्ड है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा वो भी अपने बेटे के साथ? बाबा, मिल्हान तल्ख लहजे में बोला। क्या हो गया है यार, तुम्हारी शादी ही तो कर रहा हूँ मैं। कौन सा अपने लाडले सपूत को जेल भेज रहा हूँ जो इतना भड़क रहे हो? इससे अच्छा था कि आप मुझे जेल ही भेज देते, वो मंजूर था मुझे। ना पुत्र, मैंने तो तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तुम जेल की बात करते हो। बाबा प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मैं नहीं कर सकता ये शादी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शादी के कार्ड बँट चुके हैं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शादी के कार्ड बँट चुके हैं। नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्ज़ी है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम्हारे बाप की इंसल्ट हो जाएगी। टेंशन से उसका हार्ट फेल हो जाएगा। बाबा, मिल्हान ने तड़प कर उन्हें पुकारा था। ठीक है, तैयार हूँ मैं ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा आपको इसके लिए। ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। रमल जो मिल्हान के रूम में जाते ही उठने लगी थी, मोरे की कसम पर अपनी जगह साकित रह गई, लेकिन मुंह से दुपट्टा नहीं हटाया था। तभी अंदर रूम से आने वाली आवाज़ें रमल को साकित कर गईं। मिल्हान का अपने बाप से शादी की हामी भरना उसकी जान निकाल गया था।
तभी वो झटके से बाहर आया। मोरे आप देख लें बाबा साईं के काम। वो चलता हुआ रमल के करीब नीचे सोफे पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रख चुका था। रमल जल्दी से पीछे हुई। मुंह पर रेशमी दुपट्टा होने की वजह से मिल्हान उसे नहीं देख पाया था, लेकिन रमल बखूबी मिल्हान की आंखों में छाई नमी को देख सकती थी। उसका दिल बेसाख्ता धड़का था। मोरे समझाए ना बाबा को, मिल्हान मर जाएगा मोरे, अपनी रमल के बगैर नहीं जी सकता मैं उसके बगैर। आज 1 साल 1 हफ्ता 8 घंटे और पता नहीं कितने मिनट हुए हैं मुझे उससे बिछड़े हुए। माँ, मेरी क्या खता थी? मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन मेरी रमल मुझे नहीं छोड़ेगी अकेला। लेकिन मोरे वो मुझे छोड़ गई अकेला, तन्हा कर गई वो मुझे। कैस लाला ने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि मैं रमल को बता दूं कि वो सब ड्रामा था, सब कैस लाला ने किया था। मैं तो बस अपना नाम लेकर वहाँ हीरो बन रहा था ताकि रमल के बाबा मेरी और उसकी शादी में रुकावट ना डालें। लेकिन मोरे सब बिगड़ गया। क्या कहा तुमने? कैस लाला? कहाँ मिले तुम कैस से? बताओ मुझे मिल्हान। मोरे लाला काफ़ी बार मिल्हान बनकर आपसे मिलने आ चुके हैं, बहुत बार। मैं जब जब कहीं आपसे दूर होता तो लाला ही घर आते, आपसे लाड उठवाते, लेकिन उन्होंने कभी आपको शक नहीं होने दिया। मोरे आपकी जुदाई में कैस लाला बहुत तड़पे हैं मोरे। फिर मुझसे मिलने के बाद वो अक्सर यहाँ आने लगे। क्या मेरा कैस यहाँ आता रहा? मुझे बताया क्यों नहीं? माँ सदके जाए। रमल तो ये सुनकर कि मिल्हान ने वो सब हीरो बनने के लिए किया था, साकित थी। मतलब उसने मिल्हान को दूरी का अजाब चखा कर अच्छा नहीं किया था। तो जल्दी से वो उठते अपना दुपट्टा मुंह से उतारते भागी। मिल्हान ने जब मुड़कर देखा तो वो गायब थी। उसके कद काट से मिल्हान को लगा कि वो रमल है, लेकिन बाल मिल्हान ने सर झटका था। मोरे, मैं आपको कैस लाला से मिलवाता हूँ। बस बाबा से आप कहें कि मुझे रमल के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। कमरे में जाते रमल बेड पर गिरते ज़ारों कतार रोई थी। उसकी एक गलत फहमी ने दूरियां बढ़ा दी थी। आई एम सॉरी हान, आई एम रियली सॉरी। अजान की आवाज़ सुनते उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ा था। अजान के हर एक फिक्रे का दिल से जवाब देते वो आंखें बंद कर गई। अजान के बाद की दुआ पढ़कर दरूद पाक पढ़ना उसका मामूल था। मामूल के मुताबिक उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे और आज साल बाद अपना और मिल्हान का साथ मांगा था। मिल्हान बेटा, आप परेशान ना हो, मैं आपके बाबा से बात करती हूँ। और आज आप कहीं नहीं जा रहे, आप अब इस घर में ही रहोगे। कुछ सोचते हुए उन्होंने फैसला किया था। रमल, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी मोरे। रमल, हम सब बड़ों ने तुम्हारी शादी का फ़ैसला किया है। मोरे, मैं शादीशुदा हूँ। बस चुप। वो निकाह जिसमें कोई घर कोई साहिबान शामिल ना हो, हम बड़ों की नज़र में वो निकाह नहीं होता। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। अगर तुम सच में मुझे अपनी माँ मानती हो तो उस शादी से इनकार नहीं करोगी तुम। लेकिन मोरे, लेकिन वो रमल की कोई भी बात सुने बगैर बाहर चली गई। या अल्लाह, ये मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। मैं अपने बड़ों की शफकत के साए में रुखसत हुई थी, लेकिन या अल्लाह। वो ज़ारों कतार रोते बिस्तर पर गिरी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कैस की ख्वाहिश पर मिल्हान ने कैस की हवेली से दुल्हा बनकर आना था। ये भी कैस की जिद थी जिस पर सब ने हामी भरी। मिल्हान साकित सा था, जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी हो। अपने भाई को वो जैसे नज़रों से कत्ल करने का इरादा रखता था। बदर, अगर तुम आज भी अनाबिया को लेकर हवेली ना आए ना तो बहुत जूते लगने हैं तुम्हें। कैस ने बदर को धमकी देते हुए कहा। जी लाला, मैं बस पहुंच गया। अपने पीछे से आती आवाज़ सुनकर कैस पलटा। कैसी है मेरी बहन? अनाबिया को देखते कैस उसकी तरफ बढ़ा था। लाला, ये चवल इंसान मुझे बहुत तंग करता है। अनाबिया ने सूसू करते बदर की शिकायत लगाई और बदर कैस के जूतों के डर से जल्दी से भागा था। मेरा बेटा, मैं इसके कान खींचूंगा। कैस ने प्यार से अनाबिया को पिचकारते हुए खुद से लगाया था। लाला, कान नहीं खींचने, पूरे का पूरा खींचना है, बहुत तंग करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी उसे इज्जत भी दे दिया करो। हाँ हाँ लाला, समझाएं इसे। बदर जो पिलर के पीछे छुपा था मुंह बाहर निकाल कर बोला। कैसा नाबिया को छोड़ते उसकी जानिब बढ़ा था। मोरे बचाएं। बदर चीखता हुआ अंदर को भागा था। शाह उसकी जान था ये लड़का। रमल बेटा, मेहंदी लगवा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, रस्म करनी है। रमल ने एक शिकायती नज़र उन पर डाली थी, लेकिन वो इग्नोर कर गई। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। लेकिन नाना करने के बावजूद इमामा बेगम ने ना सिर्फ रमल के मेहंदी लगवाई थी बल्कि उसे तैयार भी किया था। माशाल्लाह, चश्मे बद दूर, चांद और सूरज की जोड़ी होगी तुम दोनों की। इमामा बेगम ने रमल की बलाएं लेते हुए कहा।
लेकिन रमल खामोश साकित बैठी थी। मेहंदी की रस्म खुश असलूबी से गुजरी थी। मिल्हान ब्लैक शेरवानी पहने इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो मेरे भाई, कैस ने बेसाख्ता मिल्हान की तारीफ की थी। मिल्हान मुस्कुरा भी ना सका था। कैस ने मिल्हान की खामोशी देखते हुए उससे नजरें चुराई थी। चलो बेटा, देर हो रही है, बारात आ गई है। हर तरफ बारात के आने का शोर उठा था, साथ ही रमल के दिल से दर्द भी उठा था। सीने पर हाथ रखते उसने पानी का ग्लास पिया था। रेड कलर के टेल गाउन लहंगे में वो हूरी तो लग रही थी आसमान से उतरी कोई। देखने वाला साकित रह जाता था। चलो रमल बेटा, बारात आ गई। रमल का घूंघट निकाल कर इमामा बेगम उसका हाथ थामे उसे स्टेज की जानिब लाई, जहाँ दूल्हे मियाँ पहले से बराजमान थे। निकाह आमने सामने होना था। स्टेज के दरमियान में एक सफ़ेद रंग का पर्दा लटक रहा था। जी मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। आगा जान की आवाज़ पर मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया था। रमल मुनव्वर हुसैन शाह, आपका निकाह मिल्हान खान वल्द हातिम खान, 10 लाख हक महर, सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रमल को लगा कि उसके कान बज रहे हैं और दूसरी तरफ बैठे मिल्हान को भी यही लगा कि उसने दुल्हन का नाम गलत सुना है। रमल की तरफ से खामोशी पर मौलवी साहब ने फिर से दोहराया, रमल मुनव्वर हुसैन शाह, आपका निकाह मिल्हान खान वल्द हातिम खान से 10 लाख हक महर, सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार रमल वाकई हैरान थी। रमल जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई और अपना घूंघट उलटते वो मर्दों वाली साइड पर गई। उसने जल्दी से मिल्हान के मुंह पर से कुल्ला उतार कर फेंका था। तुम बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नाटक करने की? मिल्हान बेचारा जो खुद कंफ्यूज खड़ा था, रमल को सामने देखकर उसे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। कैस को पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने सिर्फ घर के लोगों को ही इकट्ठा किया था। आगा जान, हातिम खान सब मिल्हान की दुर्गत बनता देख रहे थे। रमल उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करते उसे मारने के दरपे थी। तुम मनहूस इंसान, मैं रुखसती के बाद अपने ससुराल आ गई और तुम्हें पूरा 1 साल लगा अपने घर में वापस लौटने में। तुम रमल मुझे वो मिल्हान से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था जब सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा था। रमल बेटा, आज तो मेरे बेटे को माफ़ कर दो। अच्छा, तो ये आप सबकी मिली भगत थी? हाँ, तो क्या रमल ही सबको सरप्राइज कर सकती है, हम लोग नहीं? कैस ने मुस्कुराते हुए कहा। मिल्हान तो बस आंखों में जनून लिए रमल को तक रहा था। तभी मिल्हान कैस को गुस्से से घूरता आगे बढ़ा। देख छोटे, अब अगर कुछ कहा ना तो फिर से रमल को गायब कर दूंगा। लाला, इस बार ये नौबत नहीं आएगी। इस दफ़ा मैं खुद रमल को लेकर गायब हो जाऊंगा। पहले दुल्हन से तो पूछ लो कि तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं। एक आवाज़ हॉल में गूंजी थी। मैं उठा कर ले जाऊंगा। रमल ने सबके सामने मिल्हान की इस हरकत पर सलाम किया था। फिर आगा जान ने अपनी सरपरस्ती में निकाह दोबारा करवाया। रमल का हाथ पकड़े मिल्हान ने खुद साइन करवाए थे। सबकी घूरियों को नज़रअंदाज करते वो शोखा बना हुआ था। निकाह होते ही सबको खाने की पड़ गई, जबकि मिल्हान तो रमल को देखे जा रहा था। रमल शायद पहली बार मिल्हान की नज़रों से पजल हो रही थी। उसकी डीप रेड लिपस्टिक से सजे होंठ मिल्हान को अपील कर रहे थे। मिल्हान ठंडी आह भर कर रह गया। अभी और इंतज़ार। ऑफ, मिल्हान ने रमल के कान में सरगोशी की थी। रुखसती का शोर उठा और उसे सबकी दुआओं के साये में ससुराल रुखसत कर दिया गया। घर आते ही मामा बेगम ने बहुत सी रस्में की। मिल्हान का बस नहीं चल रहा था कि रमल को लेकर कमरे में भाग जाए अपने। वो अभी सबसे बेजार सा हो रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट, जैसे हफ्ते क्लीम को पा लिया हो। और आखिरकार सबको मिल्हान पर रहम आ ही गया और रमल को कमरे में ले जाने की बात होने लगी। यहाँ पहली बार हातिम खान बोले, बेटा जी, जब हमारी शादी हुई थी हम अपनी बेगम को उठाकर कमरे में लेकर गए थे। अब आपकी बारी है, आप भी रमल को ऐसे ही लेकर जाएंगे। बाप के कहने पर मिल्हान और रमल दोनों का मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन फिर चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए उसने गुड़िया की तरह रमल को अपने बाजुओं में उठाया था। उसके ऐसा करते ही हूटिंग का एक तूफान बदतमीजी उठा था, लेकिन मिल्हान किसी की भी परवाह किए बगैर रमल को लिए कमरे की तरफ बढ़ा था। रमल ने शर्म से अपना चेहरा मिल्हान के सीने में छुपा लिया था। जैसे ही सब मिल्हान के कमरे के बाहर पहुंचे, सब ने यहाँ ही रमल को खड़ा करने का बोला, क्योंकि रमल को यहाँ से खुद कमरे में
जाना था। मिल्हान को बिना नेक के कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। मिल्हान के नीचे उतारते ही रमल जल्दी से कमरे में चली गई, मुबादा कोई नया हुक्म न जारी हो जाए। कमरे को देखते ही रमल की आंखें और मुंह दोनों ही एक साथ खुले थे। मिल्हान के कमरे को फूलों और लाइटों से कैस ने अपने हाथों से सजाया था। मिल्हान का कमरा खूबसूरती की आला मिसाल लग रहा था उस वक्त। कमरे में खड़ी रमल अपने दुल्हनापे का ख्याल किए बगैर कमरे को यकटुक देख रही थी। आपो ये खान जी ने करवाया है आप लोगों के लिए, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। आपो आपके हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। आज नमल भी पूरा तंग करने के मूड में थी उसे, इसलिए मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। नहीं नहीं कुछ नहीं, रमल जल्दी से बोली। आपो इधर बैठ जाएं और जीजू के आने तक बिल्कुल चेंज नहीं करना आपने। नमल ने रमल को बेड पर बिठाते उसका लहंगा साइड पर फैला दिया था। रमल चेहरे पर घूंघट लिए सर झुकाए रिवायती दुल्हनों की तरह बैठी हुई थी जब बाहर से शोर की आवाज़ पर उसके दिल की धड़कन सापित हुई थी। मिल्हान लाला पूरे 1 लाख चाहिए और 1 लाख मुझे भी। अनाबिया और नमल मिल्हान को अंदर नहीं आने दे रही थी। ये लो मेरा ATM कार्ड और प्लीज़ मुझे तरसे हुए को अंदर जाने दो। मिल्हान ने जल्दी से उनके हाथ में अपना कार्ड थमाया और कुछ भी समझने का मौका दिए बिना कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। पीछे से सबका जानदार कहकहा गूंजा था। नमल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कैस ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। पीछे बदर ने भी यही अमल दोहराया था। शुक्र है। मिल्हान ठंडा सांस भरते आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो हैरान सा दरवाजे पर ही रुक गया, क्योंकि सामने दुल्हन बनी रमल जाए नमाज पर बैठी थी। वो ट्रांस किसी कैफियत में चलता रमल के एक साइड पर बैठ गया। रेड और गोल्डन कलर का लहंगा जिस पर पर्ल का काम था मिल्हान की आंखों को खीरा कर रहा था। सर पर गोल्डन कलर का हिजाब बनाए, माथे पर टीका लगाए वो पर्दे में भी एक मुकम्मल दुल्हन लग रही थी और होंठों पर झुकी नथली मजीद कयामत बर्पा किए हुए थी। रमल आंखें बंद किए अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। मिल्हान ने धीरे से उसकी गोद में सर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। रमल ने बेसाख्ता झुकते मिल्हान को देखा था, जो रमल की गोद में सर रखे लेटा था। रमल की आंख से आंसू टूटकर मिल्हान के होंठों पर गिरे थे। मिल्हान जल्दी से उठकर बैठा और परेशान होता हुआ रमल से पूछने लगा, रमल रो क्यों रही हो? अब तो जुदाई का मौसम टल गया, अब तो हिज्र की रात खत्म हुई, अब तो वस्ल का मौसम है। फिर भी ये आंसू, ये तो खुशी के आंसू हैं हान, आपको पा लेने के आंसू। रमल ने नम आंखों से मिल्हान की आंखों में देखते हुए कहा, रोना बंद करो। मिल्हान ने रमल का हाथ पकड़ते उसे बेड पर बिठाया और जाए नमाज उठाकर अलमारी में रखी थी। रमल आंखों में आंसू लिए मिल्हान को यकटुक देख रही थी। मिल्हान चलता हुआ उसके करीब आया और रमल के कदमों के पास नीचे बैठ गया। इससे पहले कि कैस कुछ बोलता, नमल बोली, हाँ आई एम सॉरी, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। कुछ मत बोलना, बस मुझे इन लम्हों को महसूस करने दो। मुझे यकीन दिलाने दो कि मेरी रमल मेरे पास है। मुझे कोई गिला नहीं तुमसे। आज तुम्हें इस मुकम्मल रूप में देखकर, अपने सामने देखकर मुझे मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हुई मिल गई हैं। रमल मिल्हान ने उसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे मजीद कुछ कहने से रोका। कैस जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। रूम की लाइट ऑफ थी और पूरे रूम में छोटे छोटे दिए जल रहे थे और उनके इर्द गिर्द गुलाब के फूलों की पत्तियां ख्वाबनाक सा माहौल बना रही थी। बेड के दरमियान में नमल को घूंघट ओढ़े बैठा देखकर कैस की धड़कनें तेज हुई थी। वो हसीन लम्हा आ चुका था जिसका कैस को बेसब्री से इंतजार था। वो धीरे से चलता हुआ नमल के नज़दीक बेड पर बैठा और शौक होते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आज इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा, वरना कब का कमरे में आ जाता। कैस ने नमल का घूंघट उठाते सरगोशी में कहा, किसी की ख्वाहिश थी मुझे इस रूप में देखने की, फिर कैसे पूरी ना करती। नमल ने अपने खान का मान रखते हुए कहा था, सदके जाऊं, बहुत शुक्रिया जनाब। कैस मजीद शौक हुआ, मेरा रूनुमाई का तोहफा? नमल ने कैस से पूछा। यह पूरे का पूरा खान आपका है मेरी जान, अभी भी तोहफा चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ये खान मेरा है। नमल ने आगे बढ़ते हुए कैस के माथे पर लब रखे थे। इजाज़त है। कैस ने धीरे से नमल की तरफ झुकते हुए इजाज़त ली थी। नमल ने मुस्कुराते हुए उसके सीने में सर छुपाया था। दूर चांद उन सब के मिलन पर दिल से मुस्कुराया था।